So today is 16th of November. Write down the date in your notebook first at the corner. 16 November 2021. It is and Tuesday. Clear? Yes. And yesterday we have started chapter number 6. Integer. Its name is Integer. Integers. And we have completed the introduction about the integers yesterday. And today we are going to complete exercise number 6.1. So write down the heading in your notebook, that is exercise 6.1. Sure. So everybody has to complete the exercise in the classroom only. If we people cannot complete both the things, question and answer, then you may leave the place to copy the questions in your notebook. And you can copy the questions afterwards, okay? Increasing weight. Whenever you get the time. The first question is, write opposite of the following. Question number 1. Write opposite of the following. Now I am going to give you only answers. You have to leave the place to copy the question. Okay, one line you can leave it. So we are going to write down directly the answer Decreasing weight. of A. What is the question? Decreasing weight. No need to give me the answer in this way. First of all, we have to read the question. Question is increase in weight. And what is asked over here? Opposite. Decreasing weight. So increase का opposite क्या होता है? Decrease. So the answer is decrease in weight. Sure. फिर B. 30 kilometer north. 30 kilometer north. What is the opposite of the north? South. South. So it will come here 30 kilometer south. Sure. Then C. North. 80 meter east. 80 meter 80 meter west. east का opposite क्या होता है? West. West. So we can write here 80 meter west. Question D. Loss of rupees 700. तो loss का opposite क्या होता है? Profit. So we can write down profit of rupees 700. Profit of rupees 700. Sure. Then after question E. 100 meter above sea level. Above means up. So above का opposite क्या होता है? Below. Up का opposite down. Okay, so we can write down 100 meter below sea level. 100 meter below sea level. Got it? ये हो गया question number 1. Question number 2. Represent the following numbers as integers with appropriate signs. Represent the following numbers as integers with appropriate sign. Then leave the space to copy the question and let us write down directly the answers. Question number 1 is given here. An aeroplane is flying at a height
2000 meter above the ground. 2000 meter above means what is the integer comes over here? Integer क्या आएगा? इसने बोला, सबने बोल दिया, क्यों प्लस आएगा? क्योंकि above है, so that's why आंसर क्या आएगा? Plus 2000 meter. Meter is a unit which is essential to add with the number. Sure. Number B. A submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. above Below the sea level. And what is given here? minus 800 800 meter. So answer B क्या आएगा? minus 800 meter Minus 800 meter. See, all the students have to pay attention to me and write down the answer only in the notebook. Okay? If you think you can complete both the things together, then you will not get the clarity about the answer, how it comes. समझ गए? तो आपको मेरे साथ ध्यान देके सिर्फ आंसर्स लिखने हैं अभी. क्वेश्चन आप बाद में टेक्स्ट बुक से कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आंसर्स की क्लैरिटी नहीं आएगी कि आंसर कैसे आया. Got it? तो B आ गया minus 800 meter. C is a deposit of rupees 200. plus डिपॉजिट, सी बैंक सब जानते हो, minus पहले समझ लो व्हाट इज डिपॉजिट एंड विड्रॉ. लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. deposit बैंक इज अ इंस्टीट्यूट वेयर वी कैन डील विद द करेंसी. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं बैंक को, सब लोग यहाँ पे ध्यान दें. बैंक को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. तो वी कैन डील with the form of rupees and paisa because Indian currency is called rupees and paisa. So whenever we want to deal with the bank through हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी से पेमेंट ले सकते हैं. हमारे एक्सेस मनी हम बैंक में सेफली रख सकते हैं. घर पे रखे तो उसको घूमने की कोशिश कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोग बैंक में रखे तो वो सेफ है. तो इसीलिए बैंक का रोल जो है वो आज हर एक के घर में, हर एक पर्सन के घर में एसेंशियल हो गया. बैंक की अकाउंट हर एक की होती है. जब भी अकाउंट ओपन करें तभी हम बैंक के साथ डील कर सकते हैं. बैंक में अगर हम डील करना चाहते हैं तो वी पीपल हैव टू, हर एक को अलग बोलना पड़ेगा क्या मुझे? When we want to deal with the bank, we people have to open an account in the bank. तो एक अकाउंट ओपन होता है. सपोज मैं अकाउंट खोलना चाहती हूँ तो मेरा नाम आएगा नेहा व्यास, ठीक है? तो मेरे नाम से वहाँ पे अकाउंट रहता है. अगर मेरे पास कुछ है, एक्सेस मनी है या मैं कुछ मेरे अकाउंट में पैसे डालती हूँ तो जितने पैसे है उसमें क्या होगा? ऐड होगा, इंक्रीज होगा अमाउंट, बराबर. और वहां से कोई पैसे निकालती हूँ तो क्या होगा? बराबर, लेस होगा अमाउंट और डिक्रीज होगा. तो जब भी हम कुछ ऐड करते हैं उसको बैंक की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि इट इज डिपॉजिटेड. जब बैंक में हम कुछ डालते हैं हमारे अकाउंट में तो बैंक की टर्मिनोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि दिस अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट. एंड व्हेन वी विड्रॉ, हम कुछ भी वापस लेते हैं तो उसे बोलते हैं विड्रॉ द मनी. तो जब विड्रॉ करते हैं तो अकाउंट में बैलेंस कम होता है, और जब डिपॉजिट करते हैं तो अकाउंट में बैलेंस ऐड होता है. अभी मैं ले लूंगी, हाँ, आप लोगों के पास नोटबुक भी, और बाहर फेंक दूंगी. गॉट इट? तो यहाँ पे क्या दिया है कि डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200. डिपॉजिट किया माने क्या हुआ? वहां पे बैंक में अकाउंट में क्या हुआ? प्लस. तो हम क्या लिखेंगे? रुपीज जो है ऑलवेज वी कैन राइट RS तो लिख सकते हो, लेकिन बिफोर द नंबर. नंबर के यहाँ पे मीटर मैंने बाद में लिखा, नंबर के बाद वो साइन
लेकिन नंबर से पहले हमेशा रुपीज सिंबल आता है, तो रुपीज प्लस 200. एंड देन लास्ट क्वेश्चन डी में क्या है? Withdraw. विड्रॉल ऑफ रुपीज 700 माइनस Rupees minus 100. रुपीज माइनस 700 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। Yes. चलो 1 सबने लिख लिया है? Yes. शैल आई रिपीट आउट? Yes. तो 1 का क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन 3 आप कॉपी करो नोटबुक में। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। और इसके लिए मुझे Number line. रूलर चाहिए, आपकी पेंसिल चाहिए, वो निकालो बैग में से। Number line pencil. पेंसिल और रूलर से ड्रॉ करनी है। क्रॉस नहीं चाहिए मुझे, स्ट्रेट लाइन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट the following numbers on the number line. और यहाँ पे if you have noticed, तो हर एक क्वेश्चन में एक ही नंबर दिया है, तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। What is? First one is +5. आप इस तरह से उसके पास भी ड्रॉ कर सकते हो, ज्यादा स्पेस आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Now, whenever we draw the number line, ऐसे करना है? ऐसे भी कर सकते हो, जो अगर जगह है नोटबुक में। तो whenever we draw the number line, we have to think with how many numbers we need on the number line. So just now +5 we have to indicate. So we need 5 plus numbers 1 0. Okay? So 6 and one negative number. It is not essential, but to show it, differentiate it with the positive and negative. So 7 digits we need, minimum 7. So you can put it with the use of ruler and keep the distance between two numbers same. Means all the numbers points should be at the equidistance on the number line. ठीक है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो आप रखो। फिर मैं एक नेगेटिव नंबर इंडिकेट करती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mani, what I mean to say? The required numbers only you have to show on the number line. बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एसेंशियल है उतने ही पॉइंट्स इंडिकेट करो। Now what to represent? +5. So it is over here. So n circle +5. हो गया? Then number D, क्वेश्चन D में दिया है -10. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, पेंसिल का यूज करो, कुछ इधर उधर हो जाए तो यू कैन ड्रॉप आउट एंड यू कैन ड्रॉ इट वंस अगेन। पेन का यूज कम करो। देन क्वेश्चन नंबर सी में है +8।
Then E is -1. So we need very small number line for D because only -1 we have to indicate. So size of the number line depends on the digit. Which number we have to show. And E जो है वो है -6. I hope question number 2 is complete in everybody's book. Question 2 I am asking for. Yes. Yes. Shall I read it out? Yes. No. It is there in your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक में तो है. मुझे आंसर समझाने हैं इसलिए मैं लिख रही हूँ. Chalo. Then you pay your attention if question number 3 is completed. The question number 4 is asked over here related to the figure which is given in your textbook. This figure is already drawn in your textbook. Pay your attention to me first, then after I will allow you to write down something. Here it is given that adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. First of all, let us observe this figure. It is already given in your textbook, so no need to draw it in the notebook. Okay? But to understand it, I have drawn it over here. See, if you all remember, over here 0 is indicated.
Okay, and we remember that in integer, positive number, negative number and zero all are included. So that's why they have clarified the above side, upside positive numbers are there. So here it is indicated plus a, which shows us that if we move from 0 to up, we get positive numbers. So over here you can write it down, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Yeah, you can write it down in the textbook only. ठीक है, तो पॉजिटिव साइड के नंबर्स आप पहले इंडिकेट कर दो टेक्स्ट बुक में, इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, इफ इट इज पॉसिबल टू राइट. अगर पॉसिबल है तो ऐसे ड्रॉप लिख दो, जरूरी नहीं राइट साइड ही लिखो, लेफ्ट साइड पे पॉसिबल हो तो आप लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हो. एंड सेम वे वी हैव टू राइट डाउन negative integers over here. You got it? Why I am writing negative integers over here? Because 0 is given over here and it is cleared in the question. It is vertical number line. Okay? And vertical number line में up side पे positive number indicate किए हैं तो down side पे negative number आएंगे. That's why we have to show it with the negative numbers. Got it? तो down side पे negative numbers लिख दो. Then after we can write down the answers. Question A. If point D is plus 8, then which point is minus 8? F. तो आंसर डायरेक्टली हम पहले लिख सकते हैं. Point F is minus 8. This answer you can write in your notebook. Complete? Yes. Sure. Question B. Is point G a negative integer or a positive integer? So point G, where it is located? It is located here. Negative. It is a negative integer. So we can write down the answer. Point G is a negative integer. क्वेश्चन बी का आंसर लिखो. ये सारे क्वेश्चन आपको बाद में कॉपी करने हैं नोटबुक में. चलो. Write integers for points B and E. B and E. B पे क्या है? +4. And E पे क्या है? -10. So integers for point B and E are +4 and -10 respectively. Answer क्या आएगा? Respectively word we have to add over here. Why? We want to show it. +4 is indicated number B, point B, and -10 is indicating point E. तो B के लिए +4 है, E के लिए -10 है. To show that thing, we add the word respectively over here. Got it? समझ में आया सबको? Yes. चलो. Question number D. Which point marked on this number line has the least value? 1. E. 0. 0. E. Guys, 0 D. -1. Least value कौन सी number? Point E has least value. क्या वैल्यू है उसकी? माइनस. Arrange all the points in decreasing order of value. तो decreasing order क्या आएगा? नीचे. हाँ, गप्पा लगाओ. Biggest to smallest. Yes. Decrease. See, decrease के लिए याद रखो. D for down.
D for डाउन। तो डिक्रीज मानी डाउन होता है, डाउन मानी पहले ग्रेटेस्ट आएगा फिर स्मॉलर आएगा, बराबर। और इंक्रीज उसका अपोजिट ले लो, इंक्रीज मानी अप, तो पहले स्मॉलेस्ट आएगा फिर ग्रेटेस्ट आएगा। डिक्रीज के लिए सिर्फ डाउन याद रखो, डिक्रीज में डाउन, डाउन मानी अप से डाउन जाना, नीचे जाना है, तो पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है? 8 इज द ग्रेटेस्ट वन, ठीक है। फिर 5 से छोटा मानी C, okay, so we can write down here decreasing order of the integers. We can say that D, C, B, A, H, G, F and E। यहाँ पे R नहीं आएगा, E आएगा, क्योंकि ऑर्डर एक ही है। समझ में आया आंसर कैसे आया? That's why I am telling you कि पहले समझो फिर लिखो, क्योंकि आपने ऐसा शॉक किया ना मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कि मैंने सिस्टम बदल दी। चलो क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 डन। अभी फॉर क्वेश्चन नंबर 5, first of all we have to complete the given table in the textbook itself and then after we will write the answer. So question 4 complete होने के बाद आप टेक्स्ट बुक में पहले क्वेश्चन 5 खुद लिखो, मैं बाद में आंसर बताती हूँ। जिनका क्वेश्चन 4 हो गया वो क्वेश्चन 5 अपनी टेक्स्ट बुक में टेबल कंप्लीट करें। ये हो गया क्वेश्चन 3 से रख जाओ, निकाल दो ना। मैं बताती हूँ उनको, क्योंकि मैंने 5th नंबर तो दे दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमको ये टेबल है, क्वेश्चन 5 क्या बताता है? फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। कोई एक दिन पे इंडिया पे ये प्लेसेस जो है उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया गया और दैट इज गिवन ओवर हियर। तो वहां पे क्या है? तो प्लेसेस है और उसका टेम्परेचर। सचिन में है, सचिन कोल्हापुर। फर्स्ट प्लेस जो है सियाचिन, क्या है? सियाचिन। टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या आंसर आएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकेंड जो है शिमला, शिमला में बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो आएगा, ये डिग्री और सेल्सियस दोनों यूनिट दिखा रहे हैं, तो इट इज कंपल्सरी टू मेंशन, विदाउट इट योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो -10 डिग्री जो है वो हमारे नंबर से थोड़ा अप आएगा डिग्री, और C shows us Celsius which is the unit of temperature. Got it? तो आपको ये लिखना जरूरी है, कंपल्सरी। चलो फिर अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस above than 0 डिग्री।
above 0 degree and Srinagar -5 degrees Celsius below 0 degree Celsius. तो ये कंप्लीट करो टेक्स्ट बुक में. कर दिया सबने? Now in the notebook you write down question 5A और यहाँ पे लिखो कि it's done in the टेक्स्ट बुक. नोटबुक में ये रिमार्क लिखो. तो जब भी आप रिवाइज करो तो आपको दिमाग में आए कि इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है. तो ए का आंसर नोटबुक में ऐसे लिखो कि इट्स डन इन द टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक में ये कॉलम कंप्लीट कर दो. हो गया कंप्लीट. चलो फिर बी. Following the number line. Following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against the temperature. तो अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो सिर्फ आपको समझाने के लिए. ये नंबर लाइन है आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई. ठीक है. वहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. -5, -10, -15. Okay, chalo. Pay your attention here. The same number line is given in your textbook. So according to this, we have to write down the name of the place on the number line. Okay. The first is Siachen, -10 degree Celsius. तो जहाँ पे 10 डिग्री माइनस है ये वाला, उसको एनसर्कल करो और डाउन एरो करके यहाँ पे लिखो Siachen. टेक्स्ट में या इन द टेक्स्ट बुक ओनली. -2 डिग्री सेल्सियस वो कैसे आएगा? तो आपने अगर देखा हो तो आपकी नंबर लाइन पे ऐसे इंडिकेट किया गया है. तो 2 नंबर सेकंड नंबर की जो लाइन है उसको एनसर्कल करो और वो आएगा शिमला. टेक्स्ट बुक में ही लिखो. +30 तो यहाँ हो गया, ये बड़ी स्पेलिंग है तो उसको ऊपर लिख दो अहमदाबाद. ठीक है. फिर +20 दिल्ली तो इसको डाउन करके लिखो दिल्ली. एंड -5 तो ये -5 यहाँ पे आप एरो करके आप लिख सकते हो श्रीनगर. और नोटबुक में सेम वे नंबर बी लिख के लिखो कि इट्स डन इन द टेक्स्ट बुक. नोटबुक में ऐसा लिख दो नंबर बी इट्स डन इन द टेक्स्ट बुक. चलो 2 क्वेश्चन बाकी है अभी भी. क्वेश्चन नंबर सी ऑफ 5 का जो क्वेश्चन नंबर सी है वो क्या है कि which place is the coolest place? अरे coolest वक्त पे मत लड़ा. coolest means क्या? 30 डिग्री जो है वो ज्यादा है कि कम है? तो वहाँ गर्मी ज्यादा होगी कि ठंडी ज्यादा होगी? -2 is smaller than 30. तो स्मॉलर मीन्स टेम्परेचर डाउन जाता है और टेम्परेचर डाउन जाए मीन क्या होता है? वहाँ पे ठंडी होती है. तो कूलेस्ट प्लेस कौन सा हुआ? शिमला हुआ. तो सी क्या आएगा? शिमला.
गप्पे ही लड़ा रहे हो, कोई दिमाग नहीं यूज करता। एंड क्वेश्चन डी क्या है? राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेंपरेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो अहमदाबाद एंड दिल्ली has more than 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये भी नोटबुक में कंप्लीट करो। तो यहाँ तक का हमारा आज का प्लानिंग था। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। आप सबको आंसर्स मैंने यहाँ कंप्लीट करवाए। क्वेश्चंस आपको कॉपी करने हैं नोटबुक में फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो आपको अगर टाइम मिले तो सबको क्वेश्चंस कॉपी करने आने हैं, आंसर्स की जगह छोड़ देना। मिनिमम 2 लाइन्स, मैक्सिमम 4 लाइन्स वी नीड टू कंप्लीट द आंसर्स। गॉट इट? तो आज का होमवर्क इतना ही है कि आपको ये क्वेश्चन कॉपी करने हैं 1 to 5 के पहले, और टाइम मिले तो 6 to 10 की कॉपी करके आना। Yes. ठीक है?